Hello everyone, would like to welcome you all to the platform of IS Origin. That's me Akash and Dev. And as you all know, UPSC prelims is over. UPSC has presented one of the most difficult paper, I would say, of all times or rather past 10 years, I would say. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, when we talk about the difficulty of a paper, we assess the difficulty on various parameters. One parameter is कि there may be some topics which were unheard of. That's one thing. But another thing is the type of the questions which we saw this year in the prelims, they were also very much new. They are giving you three statements, and then you have to analyze those three statements in the next three statements, and then you are supposed to answer, which I'll of course be showing you in the paper as well. Anyways, out of 100 questions, we had roughly 20 to 21 questions which were from the history part. So in the history part, the beauty is that if I talk about the modern history, so modern history se we just had 5 questions and 16 odd questions were from ancient, 0 was from medieval. Let me tell you, medieval se kuch nahi aaya, like last year as well, and art and culture se bhi we had questions. So ancient and art and culture se we had 16 questions, modern se we have 5 questions. So history se you can say around 21 questions were there in your paper. Got it? Now, why there may be some discrepancy? इसमें somebody will say 20 questions, somebody 21 questions, because art and culture में some people will say 15 questions, some will say 16 questions. कुछ चीज़ों को overlap किसी और subject से करवा देते हैं. जैसे there was a question on Hilton Young Commission. Somebody will say it is from economy, somebody will say it is from history. So that doesn't really matter, कि आप इसको किस domain में रखते हैं. What matters is that how do you approach such questions? Similarly, there's a case with, there was a question Pleistocene era, rivers. So I'll keep it in the history part. Somebody will keep it in the geography part as well because it is a river-based question. Now, importantly, in this session, you're going to get the basic approach to, go for the history questions. I'll also tell you the difficulty level, and if you have appeared in this year's paper, of course, it will help you in improving the approach. But if you're planning to appear in the next papers, be it UPSC or the civil services examination, this session surely will be very much helpful. And on this very platform, we are planning a lot more initiatives in the near future. So make sure you are staying tuned for those initiatives as well. So इसलिए subscribe जरूर कर ले इस channel को अगर आप first time आए हैं. So now I'll be starting off with the modern history के 5 questions. Before I start, I would like to tell you कि ये जो modern history के 5 questions है जो हम करने वाले हैं, इसमें there was question on a commission जो कि history का commission है, Hilton Young Commission. There was question related to तालुकदार्स, ये NCERT का सीधा सीधा topic है. I'll just show you. Then there was this question on सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, कि सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी को लेकर या उनकी जो पोजीशनिंग है उसको लेके there was a beautiful question. So मतलब I'll say topics like peasant revolts की हम बात करते हैं और peasant movements like एका मूवमेंट, बारदौली सत्याग्रह, all these गांधी नेचर की जो मूवमेंट है, तो उस पर भी वो क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहे हैं. And then when we talk about the legislations during the time of the British, जो constitutional developments हैं like Montagu Chelmsford reform, Morley Minto reforms, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, उस तरह के भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं. सो इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ एवरीथिंग. अब वैसे ही 5 क्वेश्चन में क्या ही पूछ लेगा वो. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू लुक इनटू. सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर डिस्कशन. नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, क्वेश्चन इज अबाउट द हिल्टन यंग कमीशन. सो हिल्टन यंग कमीशन की बेसिकली उसने यूटिलिटी पूछी है. व्हाई इन द फर्स्ट प्लेस वी हैड द हिल्टन यंग कमीशन. सो लेट मी टेल यू, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश देयर वाज समथिंग कॉल्ड होम चार्जेस. इंडिया से होम चार्जेस जा रहे थे ब्रिटिश. जो ब्रिटेन में ऑफिशियल्स थे, इनके रिटायर्ड, उनकी पेंशन्स थी. कई वहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जो इंडिया के अफेयर्स देखते थे, सो उनकी सैलरीज वगैरह थी. सो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, दो ऑन द बेसिस ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन बाद में जाके आरबीआई भी बना है, बट यहाँ पे इट इज नॉट टू सपोर्ट इंडियन इंपोर्टर. इट हैज नथिंग टू विद द एक्सपोर्ट्स ऑफ द कॉटन. पहली बात तो ये है. क्वेश्चन यहाँ पे है कि बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए ए और डी के बीच में, बट द आंसर इज गोना बी ए because it is aiding the flow of remittances from India. So ultimately it is all about the drain of wealth. जो हम drain of wealth की बात करते हैं, उससे कहीं ना कहीं आप इसको relate कर सकते हैं. Got it? Moving ahead, then we talk about the Eka and Bardoli. Now, which of the following is correct? That is the question. अब यहाँ पे the most important thing is, have a look at the statements. It says, Eka movement was supported by the Congress, while Bardoli Satyagraha was initially independent of the Congress influence and
only in the last stage was supported by the Congress. So you got to understand this thing कि जो बारदौली सत्याग्रह है वो बहुत डीपली इंटीग्रेटेड है कांग्रेस लीडरशिप में. इट वाज स्पीयर हेडेड बाय whom? Himself, सरदार वल्लभ भाई पटेल. सो दिस इज इनकरेक्ट कि भाई इसको सपोर्ट नहीं किया. बिल्कुल किया. एक मोमेंट. अब यहाँ पे क्या तालुकदार ऑफ द अवध ने लीडरशिप दिया. अब आप पहले तो याद रखो this is a movement which is against talukdar, it is not led by talukdar, so it's a word play, but you have to understand. बारदौली सत्याग्रह was against the enhancement, बिल्कुल सही बात है. एका मूवमेंट was protest against the excessive, ये बिल्कुल सही चीज है. एक बार फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि पॉइंट्स क्लियर हो जाए. नाउ इट इज सेइंग बारदौली सत्याग्रह टुक प्लेस इन सौराष्ट्र. नाउ यहाँ पे भी गड़बड़ी है. क्यों? जो सूरत एरिया है दैट इज नॉट सौराष्ट्र. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द गुजरात का मैप, सो सूरत यहाँ पे, तो ये सौराष्ट्र नहीं है. दिस इज टोटली इनकरेक्ट. इवन यहाँ पे भी वाराणसी मिर्जापुर इसने लिखा हुआ है, बट द रियलिटी इज कि जो बाराबांकी, सीतापुर, लखनऊ, बड़ैच, हरदोई एरिया है वहां पे एका मूवमेंट थी. ये भी यहाँ पे गड़बड़ हो गया. सो सी इज गोना बी द राइट आंसर. अगेन, इज इट इजी क्वेश्चन? नो, नॉट एट ऑल. बट again, if you read it properly, if you read between the lines, you will be able to answer that. Moving ahead. Now, which of the following factors contributed to the formation of forward bloc by Netaji Subhash Chandra Bose? Now, this is the question. अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना. Since this question is there, Bose failed to win the confidence of Mahatma Gandhi. Now, to a great extent, this is true. क्योंकि पट्टभी सीतारमैया को सपोर्ट करे थे गांधी. सो ये त्रिपुरी सेशन की बात हो रही. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द त्रिपुरी 1930 त्रिपुरी क्राइसिस या त्रिपुरी सेशन में जो भी हुआ. नाउ कांग्रेस लेफ्ट वाज डिसयूनाइटेड एंड फेल्ड टू सपोर्ट बोस. दिस आल्सो इज करेक्ट. क्यों? अब लेफ्ट क्यों इनका कांग्रेस में है, बट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी है, कम्युनिस्ट भी है, एमएन रॉय के भी फॉलोअर्स हैं. थोड़ी सी फ्रेगमेंटेशन थी. दिस इज ट्रू. कम्युनिस्ट डिड नॉट सपोर्ट बोस इन हिज एंडेवर्स. ना ये कहना थोड़ा गलत होगा. दो कम्युनिस्ट जो हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक को सीधे ज्वाइन कर लिया, बट अल्टीमेटली दे वर सपोर्टिंग. मतलब ऐसा नहीं बोल सकते डिड नॉट सपोर्ट. अभी डिड नॉट सपोर्ट बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाती है. सो इट वाज मोर अबाउट मेंटेनिंग द यूनिटी अंडर गांधी रादर देन डायरेक्टली अपोजिंग द बोस एंडेवर्स. तो ये थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड प्ले किया हुआ है इसने. तो डिड नॉट सपोर्ट को मैं यहाँ पे इनकरेक्ट करूंगा. थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे इनकरेक्ट होगी. बट 1-2 करेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1-4 का ऑप्शन आ रहा है, बिकॉज 2-4 तो हो नहीं सकता, 1 तो हमने लेना ही है. सो इसलिए आई विल गो विद बी एज द राइट आंसर. इसमें दैट supporter of the M.N. Roy, socialist leader like Jayaprakash Narayan preferred Congress, unity rather than supporting Bose. This absolutely is correct. So इसमें कोई doubt नहीं है. We have to go for that. Next question then we have is consider the following statement. ये British policy of Awadh है. So let me tell you, Awadh was annexed on the pretext of misgovernance के basis पे उसको लिया गया. अब यहाँ पे ध्यान देना, तालुकदार was dispossessed of the estates. बिल्कुल सही बात है. But were they allowed to retain the arms and the forts? The answer is no. They were disarmed. Their forts were completely destroyed or taken away. And dispossession तो हुआ ही था states का. तो ये गलत है. Retention नहीं थी यहाँ पे, याद रखना. So first statement incorrect है. So first statement incorrect होती है तो आंसर either A है या फिर D है. Then we have summary settlement. Summary settlement में assume किया गया तालुकदार were outsiders. तो अब यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है कि भाई दे हैड नो परमानेंट हेरिडेटरी स्टेक ऑफ द लैंड. इसीलिए सीज की गई है लैंड थ्रू द की फोर्स एंड द फ्रॉड वाला वो पॉइंट लगा के तो उनको हटाया गया है. समरी सेटलमेंट में यही है. और ब्रिटिश डायरेक्टली रेवेन्यू लेना चाहते थे. कोई भी वो जो हम बोलते हैं बीच में दलाल नहीं चाहते थे, मिडिल मैन नहीं चाहते थे. सो 2 and 3 इज द राइट आंसर. सो दैट्स व्हाई आई वुड गो विद ए एज द राइट आंसर. नाउ अभी तक हमने जितने भी मॉडर्न के क्वेश्चंस किए हैं, आई कैन श्योरली टेल यू कि वो मॉडरेट से डिफिकल्ट की कैटेगरी में जरूर, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. मतलब इफ यू हैव रेड एनसीईआरटी प्रॉपर्ली यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, आई कैन अश्योर यू. गॉट इट? मूविंग अहेड. अब यहाँ पे देखो, द जेनेसिस ऑफ द पॉलिटिकल अलायंस बेस्ड ऑन द कम्युनिटी ले इन द वेरी नेचर ऑफ द मॉन्टेग्यू स्टैमफोर्ड रिफॉर्म, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, उसके ऊपर यहाँ पे बात हो रही है. अब आप एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे कह रहा है द रिफॉर्म्स रिटेन्ड एंड एक्सटेंडेड द सेपरेट इलेक्टोरेट. बिल्कुल सच बात है, फैक्चुअल ट्रुथ है. The separate electorates were supposed to counter Indian nationalism. बिल्कुल सही बात है. Deprived classes rallied around the political advantage inherent in separate electorate. बिल्कुल सही बात है. Deprived जो classes हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इसके behind rally किया ही है. तो I will go with D because this absolutely is true. So सारी की सारी जो statements हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सही हैं. So I am very much sure about one thing कि ये जितने भी मतलब points हैं जो भी हम लोग समझ रहे हैं, आपको at least यहाँ पे एक basic level of जो clarity है वो जरूर मिल गई होगी by now.
मतलब यू मस्ट हैव गॉट अ डिसेंट आइडिया कि कैसे आपने इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना. सो if you are preparing, for the next year exam as well, this particular thing is going to help you. Why? Because ultimately, in every exam they are just trying to check one thing only, and that is your presence of mind, और आप कैसे अपनी नॉलेज को अप्लाई कर रहे हो. अब ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं आते थे. उसने एक स्टेटमेंट दे दी आपको, एंड देन दे आर ट्राइंग टू आस्क यू टू एनालाइज दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट. नाउ दिस इज वेयर द क्वेश्चन बिकम्स अ बिट इंटरेस्टिंग, या क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बोलूंगा टफर साइड पे जा सकता है, नो डाउट अबाउट इट. सो ये पॉइंट जो है हमें यहाँ पर ध्यान से रखना है. इज दैट 100% क्लियर बेटे एवरीवन? चलिए मूविंग अहेड, अब हम एक नेक्स्ट स्टेज के ऊपर चलते हैं. ठीक है, मिडेवल से वी हैव गॉट 0 क्वेश्चन व्हाटसोएवर. आर्ट एंड कल्चर से इफ आई सी अराउंड 9 क्वेश्चन. अब देखो इसमें कई करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी आर्ट एंड कल्चर का मान सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट ओवरऑल आई वुड से एंशिएंट से अकॉर्डिंग टू मी 7 क्वेश्चंस आर देयर, आर्ट एंड कल्चर से 9 क्वेश्चंस है. सो इन टोटल मतलब मॉडर्न के अलावा मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे 16 क्वेश्चन है. 16 क्वेश्चन आगे ये पोर्शन से, 5 मॉडर्न के, तो वही बता रहा हूँ आपको रफली कि 21 क्वेश्चंस वी हैव गॉट इन टोटल फ्रॉम द हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पार्ट, विच एक्चुअली इज अ गुड नंबर. मतलब उसको मैं कम किसी हिसाब से नहीं बोल सकता, बिकॉज ये बहुत बड़ा नंबर माना जाएगा इस कंटेक्स्ट में अगर हम देखें. सो लेट्स मूव टू दिस वेरी पार्ट. अगर कोई डाउट आता साथ के साथ पूछ सकते हैं. अब देखो इसने पूछा प्लेस्टोसीन पीरियड, इधर यमुना वंस फ्लोड इनटू द इंडस और सतलुज फ्लोड इनटू द यमुना, ऐसे करके पूछा. अब नाउ एक चीज ध्यान में रखना, एबव असर्शन की बात हो रही है. अब देखो इसने बोला नदी सुक्ता ऑफ द ऋग्वेदा, which of the following are the basis of the assertion? That's a question. अब यहाँ पे इस चीज को बहुत ध्यान से आप समझना है कि what exactly we are supposed to understand. Why do I say that? Because यहाँ पे जो नदी सुक्ता है, जो ऋग्वेदा की हम लोग बात करते हैं ना, इसमें जो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन निकल कर आता है, पहले तो उसको आप ध्यान में रखें. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड वो क्या है. नदी सुक्ता मेंशन सेवरल रिवर्स, ठीक है. सो सरस्वती को भी मेंशन करता है ऑफ कोर्स. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इट इज नॉट प्रोवाइडिंग यू जियोलॉजिकल या जियोमॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस. ये बात मानते हो? प्लेस्टोसीन पीरियड की तो नहीं बात करेगा. हाँ, होलोसीन बोलता जो प्लेस्टोसीन के बाद आया, मैं फिर भी मान लेता, लेकिन प्लेस्टोसीन की बात हमें ऋग्वेदा में कैसे मिलेगी? बात समझ रहे हो? सो ऋग्वैदिक एज जो है वो तो हड़प्पन के भी बाद आई है. तो यहां पे ये जो स्टेटमेंट है इट विल बी टोटली इनकरेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट देखना, एक्सप्लोरेशन ऑफ सतलुज यमुना बाय रॉबर्ट ब्रूसफुट. अब ये बहुत ये फैक्चुअली इनकरेक्ट क्यों है? स्पेशली ये हिस्ट्री ऑप्शन वालों को ज्यादा आइडिया होगा. ब्रूसफुट फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री हैं, बट हिज वर्क इज नॉट इन नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया या मैक्सिमम गुजरात तक है. तो साउथ इंडिया में इनका सारा का सारा काम है, नॉर्थ से कोई लेना देना नहीं है. सेकंड स्टेटमेंट गलत है. सेकंड को एलिमिनेट किया, फर्स्ट को एलिमिनेट किया, यू आर लेफ्ट विद 3 ओनली, विच इज करेक्ट. थर्ड करेक्ट है कि जो सेम स्पीशी है इंडस और गंगा में डॉल्फिन्स की, ये सही है. ये 3 ओनली हमारा सही जवाब होगा. सो आई एम होपफुल दैट दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. गेटिंग टू द पॉइंट. सो मतलब यहाँ पे इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं मानता हूँ ये बहुत टफर साइड पे है क्वेश्चन. आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि व्हाट अप्रोच हैज टू बी व्हाइल आंसरिंग सच क्वेश्चंस. मूविंग अहेड बच्चे, क्वेश्चन है बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी से. अब मैं नहीं ये बोलूंगा कि ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं आए हैं, लेकिन इस बार इसने थोड़ा सा इस क्वेश्चन को टफ बना दिया. कैसे बनाया टफ? आप ये सोचो. क्वेश्चन टफ इसलिए है बिकॉज क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एम्प्टी सीट क्या रिप्रेजेंट करती है. बच्चों को सबको पता होता है धर्म चक्र, स्तूपा, हॉर्स, लोटस, व्हाइट एलिफेंट, बुल वगैरह, ये सब पता होता है. तो महाभिनिष्क्रमण जो है वो तो हॉर्स है. महापरिनिर्वाण का क्या है? स्तूपा है. फर्स्ट सरमन क्या है? चक्र है. अब अगर आपको ये तीनों पता है तो एलिमिनेशन से हम लोग क्या कर सकते थे कि हाँ भाई मेडिटेशन ही होगा एम्प्टी सीट. आई नो यहां पे बैठ के बोलना मेरे लिए आसान है, बट बेटे यही अप्रोच चाहिए होती है एग्जाम में भी कि यू हैव टू अप्लाई दैट माइंड. बिकॉज देखो प्रीलिम्स को क्लियर करना है, इट इज ऑल अबाउट रिलेटिवली बेहतर होना बाकियों से. अब आपने अगर वही गलतियां कर दी जो बाकियों ने की तो आप क्लियर नहीं करोगे. ठीक है, सिलेक्टिव लोग ही क्लियर कर रहे हैं. इसीलिए मैं ये बता रहा हूं कि मेडिटेशन जो है बुद्धा की, वो एम्प्टी सीट के साथ लिंक होगी. क्यों? क्योंकि बाकी तो हमें पता ही है सिंबल, यही नहीं पता. क्योंकि बुद्धा जब मेडिटेट करते हैं तो हम कहते हैं एम्प्टी सीट उसको रिप्रेजेंट कर रही है. सो दिस इज व्हाई दिस हैज टू बी द राइट आंसर. इज इट टफ? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन जरूर है, नो डाउट अबाउट इट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. अब ये एंशिएंट रिवर्स के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आया, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया इसने, व्यायवती पूछ लिया. देखो पारुशिनी रावी है, बिल्कुल सच बात है. वितास्ता इस जेलम अस्किनीज चनाब, तो इसने ये इंटरचेंज कर दिया, तो ये दोनों गलत हो गए.
तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, तो 1 और 2 तो इनकरेक्ट है, 1 और 2 इनकरेक्ट है, काट दो। अब बात है थर्ड करेक्ट है, तो थर्ड तो करेक्ट है, इसको भी काट दो। या तो आंसर 3 4 है या 3 ओनली है। सो व्यायवती जो है बेटे ये कोई और रिवर है, व्यास तो नहीं है विच इज मेंशन्ड, सो ऑफ कोर्स आंसर हैज टू बी सी, दैट इज 3 ओनली इज करेक्ट। सो आई नो एग्जाम प्रेशर में कई बार 3 4 भी, अब यहाँ पे सब बच्चे फंस रहे थे इसी में कि 3 ओनली है या 3 एंड 4 है, इसको लेके काफी कंफ्यूजन रही है स्टूडेंट्स के दिमाग में, नो डाउट अबाउट इट। बट अगेन आई वुड से कि दिस इज हाउ वी आर सपोज टू आंसर दिस क्वेश्चन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन अमरावती स्तूपा। हम बात करते हैं नॉर्थ में गंधारा स्कूल था, मथुरा स्कूल था, एंड देन अमरावती स्कूल की हम लोग बात करते हैं। अब देखो इट इज इन लोअर कृष्णा वैली, बिल्कुल आंध्र प्रदेश की लोअर कृष्णा वैली है, गुंटूर वगैरह एरिया। अब देखो ये कह रहा है इट इज नेक्स्ट ओनली टू सांची स्तूपा। मैं आपको बताना चाहूंगा 13-14 मीटर से भी अगर डाया कंपेयर करोगे, अमरावती इज एक्चुअली द लार्जेस्ट, नॉट नेक्स्ट टू द सांची, सांची से बहुत बड़ा है। बट अगेन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको ये बात पता होगी, बिकॉज अगेन दिस इज अ टफ वन। सो मैं ये बता दूं कि ये सांची से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे इसने कंफ्यूज करा है, कई बच्चों का ये गलत हुआ है, आई एम नॉट डिनाइंग इट। एंड इट कैरिड द कल्चर, ठीक है, जो ये एस्पेक्ट थे इसके इम्पैक्ट था वो साउथ ईस्ट एशिया का बिल्कुल गया है। तो आई वुड से दैट या बी इज द राइट आंसर, बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे एलिमिनेट हुई है। बट अगेन इज इट इजी क्वेश्चन? नो इट इज नॉट, इट इज सर्टनली अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर एनी वन टू आंसर, बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे हमने एलिमिनेट करनी थी। गॉट इट? नाउ मूविंग अहेड वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। अब देखो नेक्स्ट वन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या है, नॉट करेक्ट पूछा है उसने, इट हैज आस्क्ड फॉर द नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, सो लेट्स ट्राई टू डू दैट। अब अगर आपने संगम हिस्ट्री पढ़ी है या संगम एज के बारे में पढ़ा है, वहां पे आप पढ़ते हो अबाउट द तमिल एपिक्स, दैट इज मणिमेगलई, सिलपद्दीकरम, है ना, जो इलांगो सत्थनार जैसे लोगों ने लिखी थी। अब उसके हिसाब से सेंगुत्तम चेरा बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। आप पांड्यास भी पढ़ते हो जो संगम लिटरेचर के स्पॉन्सर्स हैं, सो आप पढ़ते हो नेदुजेलियन के बारे में। लेकिन ये बताना चाहूंगा कि ये जो उदयांजिराल है ये भी चेरा, ये चोला नहीं है, सो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बट अगेन एग्जाम में हो सकता है आपको ना स्ट्राइक किया हो, सो 1 and 3 आर करेक्टली मैच्ड, बट क्वेश्चन इज अबाउट नॉट करेक्टली मैच्ड। सो नॉट करेक्टली मैच क्या होगा? 2 ओनली इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूजन में आके इसको गलत कर गए हैं, सो ये आपने याद रखना है, नॉट करेक्ट पूछा तो ये नॉट करेक्ट है, इसलिए बी इज गोना बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। वेरी इंटरेस्टिंग। सो हमने क्या करना था, यहाँ पे बी को सही मार्क करना था, 2 ओनली इज द राइट आंसर। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप सिली मिस्टेक्स में तो बिल्कुल गलत नहीं कर सकते, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू ऑलवेज कीप इन योर माइंड। आई होप दिस सेशन इज एडिंग सम वैल्यू टू योर प्रिपरेशन, बिकॉज अल्टीमेटली देखो मैं इस चीज को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, पेपर मुश्किल था, बट एट द सेम टाइम अगेन मतलब यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, एंड इट इज मोर अबाउट द एग्जीक्यूशन एज वेल, कि आप जितना भी पढ़ लो उतना कम है, पर हाँ एग्जीक्यूशन जो है उसको आपको थोड़ा सा ऑन पॉइंट रखना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं यूपीएससी ने सबको बता दिया कि एग्जीक्यूशन की जो मेन गेम है होने वाली है, एंड प्रिपरेशन में यू हैव टू मेक श्योर दैट एनसीईआरटी इज ऑल्सो यू आर रीडिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। मूविंग अहेड, अब जैसे ये वोकलिस की बात आई है, ठीक है, मल्लिकार्जुन मंसूर, अगेन आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई द फैक्ट कि ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा, बिकॉज ऑफ कोर्स मतलब नॉट मेनी पीपल नो अबाउट हिम, ऐसा भी है नहीं कि अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में थे, तो इसीलिए व्हाट एग्जैक्टली हैज टू बी राइट, इट इज जयपुरी घराना, जयपुर घराना है, बट अगेन मतलब इट इज अ टफ क्वेश्चन। अब देखो विच आर द फॉलोइंग टेक्स्ट में वी हैव गॉट द टर्म क्षेत्रपाणी। अब देखो एक चीज याद रखना, शतपथ ब्राह्मण, यहाँ पे ऑप्शन में आई थिंक देयर वाज दिस अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र तो कौटिल्य की बुक है, अष्टाध्यायी पाणिनि की है, ये ग्रामर है संस्कृत। ऋग्वेदा में मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्षेत्रपति मेंशन है, नॉट पत्नी, क्षेत्रपति। तो यहाँ पे यूपीएससी ने कंफ्यूज किया है, तो आंसर ऑफ कोर्स इज बी, अथर्ववेदा, बिकॉज क्षेत्र पत्नी पूछा है, क्षेत्र पत्नी इज इन अथर्ववेदा। मेनली ऋग्वेदा में क्या है, क्षेत्रपति का मेंशन है, क्षेत्र पत्नी का मेंशन नहीं है। अगेन अ टफ क्वेश्चन, अगेन बाय यूपीएससी, नो डाउट अबाउट दैट। अब आप ये देखो, वी मूव टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ट्राई टू हैव अ लुक एट दैट, व्हाट दे आर ट्राइंग टू मतलब अचीव इन दिस वेरी क्वेश्चन, लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। अब लिटरेरी एविडेंसेस की बात हो रही है, पाली टेक्स्ट वगैरह की। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, अब देखो यहाँ लिटरेरी एविडेंस ऑफ द पाली टेक्स्ट इज corroborated by the archaeological evidences of पंचमा कॉइंस, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये पाली जो है टेक्स्ट वो कॉइंस की बात करता है। इमर्जेंस ऑफ द अर्बन लाइफ, ट्रांजिशन टू द मनी इकोनॉमी, क्लियर।
नाउ यू गॉट टू अंडरस्टैंड, सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। अब आप एक चीज माइंड में रखना कि क्या इमर्जेंस ऑफ अर्बन लाइफ हो रही है? बिल्कुल हो रही है। कैसे भाई? जब कॉइनेज वगैरह आ जाएगी एंड पंचमार्क कॉइन्स आप देख रहे हो, ये सारी जो चीजें कहीं ना कहीं, तो अबव स्टेटमेंट आर मोस्ट अप्रोप्रिएटली एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग। तो ट्रांजिशन टू मनी इकोनॉमी तो है डेफिनेटली, बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि जो वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मेटेलिक मनी होती है, इट इज अ फीचर ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन, यानी कि महाजनपदा, क्योंकि अब आपके पास सरप्लस आ गया है और आप इसलिए मार्केट में करेंसी की सर्कुलेशन देख रहे हो। तो ये आप याद रखना। ट्रेड रूट्स भी थे, उत्तरा पथा, दक्षिणा पथा, फोर्टिफाइड सिटीज थी नगरा, गिल्ड्स थे, नगर श्रेष्ठी, गिल्ड्स, गिल्ड्स मतलब जो ग्रुप्स होते हैं ट्रेड्स के, आर्टिसंस के, तो ये सब थे। इसलिए आई विल गो विद सी एज द राइट आंसर। क्लियर हुआ जी? सो यहाँ पर जो सही जवाब है दैट हैज टू बी सी। अगेन मतलब क्वेश्चन वही बात है, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस आप पहले नहीं देखते थे, मतलब यू वर नॉट experiencing questions like these in the previous year UPSC papers if you see, but now UPSC has started to test you on these lines as well, तो मतलब of course questions का level थोड़ा up हुआ है। Now the next one if I talk about, अब यहाँ पे क्या temples ही हैं। क्वेश्चन देखो, which of the following temple have Nagara style शिखरा? नगरा स्टाइल का जो शिखरा है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। नाउ दिस एक्चुअली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। Now, when I talk about this particular question, the important idea which I have to talk about is कि यहाँ पे इसने एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको हिंट ड्रॉप किया है जिससे आपका एलिमिनेशन हो सकता है काफी हद तक। देवगढ़, अब देवगढ़ जो है ये तो प्रॉपर क्या है, नगरा स्टाइल है ही है। इट्स अ नगरा स्टाइल का यहाँ पे देवगढ़ और नियर बाय एरियाज में। तो 3 तो होगा। अब या तो बी है या सी है, डी है। चलो एक तो एलिमिनेट हुआ, कम से कम एक एलिमिनेट हो गया। नाउ लेट मी टेल यू, विरूपाक्षा टेम्पल जो पट्टदकल में है, बी वेरी मच क्लियर कि यहाँ पे ये जो पूरा बनाया गया था टू कमेमोरेट विक्ट्री ऑफ द पल्लवास, इट इज वेरी फाइन टेम्पल, बट इट इज बिल्ड वेरी मच द्रविड़ा स्टाइल के ऊपर ये जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पिरामिडिकल साउथ, वो जो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं विमाना, सो विमाना हमें देखने को मिलता है। सो विरूपाक्षा टेम्पल इज नॉट द राइट आंसर। एंड ये फोर्थ को हमने एलिमिनेट करा, 4 यहाँ पे एलिमिनेट होता है, 3 जो है वो डेफिनेटली होगा। तो यहाँ आंसर है 2, 3 या फिर 3 है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ आई होल में तो ये कहीं ना कहीं है, तो इसलिए बी हैज टू बी द राइट आंसर। बट इट्स अ टफ क्वेश्चन बिकॉज कई लोग सी मार के आए हैं 3 ओनली, बिकॉज 3 तो होना ही था, बट यहाँ पे 2 भी आना था। अर्ली चालुक्यन स्ट्रक्चर्स जो हैं वहां पे हम लोग कर्वीलीनियर नगरा स्टाइल का शिखरा देखते हैं, जो रेखा प्रसाद टाइप जो बोल सकते हो। तो हम मतलब जैसे नॉर्थ में ऐसा शिखरा देखते हैं, साउथ में हम लोग ऐसा देखते हैं, ठीक है, पिरामिडिकल स्टाइल। तो ये हमें अहिहोल में देखने को मिल रहा है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। बट इज इट अ इजी क्वेश्चन? नॉट एट ऑल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखो 4 स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस। अब आप एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे बहुत बच्चे क्यों फंसे हैं, क्योंकि देखो मैं ये नहीं कह रहा यक्षास को या यक्षनीस को मेंशन नहीं कर रहा जैनिज्म, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन क्वेश्चन तो बात कर रहा है अबाउट 4 स्टेजेस ऑफ एग्जिस्टेंस। बात समझ रहे हो? नाउ सिंस द क्वेश्चन इज अबाउट द 4 स्टेजेस ऑफ एग्जिस्टेंस, यहाँ पे यक्षा इज नॉट अ स्टेज ऑफ एग्जिस्टेंस, ये आपको पता होना चाहिए एब्सोल्युटली। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि जैनिज्म में जब हम 4 स्टेजेस की बात कर रहे हैं गति की, तो ऑफ कोर्स देव स्टेज होगी, देव गति होगी, नो डाउट। मनुष्य गति होगी, ठीक है, मनुष्य गति की, आप मनुष्य हो तो मनुष्य गति ही तो है, ठीक है। एंड देन यू विल हैव त्रियच गति भी, जो एनिमल्स वगैरह की होती है, तो त्रियच गति होती है, आप एनिमल हो सब ह्यूमन हो, ये होता है। मनुष्य गति होती है ऑफ कोर्स, देव गति होती है, और एक चौथी गति होती है जिसको बोलते हैं नर की गति। सो नर की गति इज देयर, दैट इज हेलिश बीइंग, इनफर्नल जो हम बोलते हैं, ठीक है। सोल्स हु हैव कमिटेड एक्सेसिव वायलेंस, बहुत ग्रीड है जिन सोल्स में, दे लीड टू द नर की गति। सो आपको ये पता होना चाहिए कि मनुष्य गति क्या है, मोस्ट डिजायरेबल डेस्टिनी है, क्योंकि यहां से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देव गति की हम जब बात करते हैं तो सोल्स बॉर्न इन द हेवनली रिलीम्स की हम बात करते हैं, वो देव गति होगी। जिनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर से हम रिलेट करते हैं, दैट इज देव गति। देन वी हैव गॉट त्रियच गति, जो है ऑफ कोर्स बर्ड, इंसेक्ट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है, जो सफरिंग झेल रहे हैं, वो त्रियच गति है, ठीक है, त्रियंच गति ऐसे कुछ करके। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो यक्षन यक्षनीज आर देयर, बट यक्षन यक्षनीज कांट बी सेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, बिकॉज नर की गति आना था यहाँ पे यक्ष गति। सो इसलिए बी इज द राइट आंसर, इट इज नॉट अ गति। क्वेश्चन डिफिकल्ट है ये, क्यों? बिकॉज ये नहीं पढ़ते हम नॉर्मली, मतलब हम पंच महाव्रत वगैरह पढ़ते हैं, 5 वोस पढ़ते हैं, बट ये सब नहीं पढ़ते, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफर साइड पे था। सो दे आर जैन जो फिलोसफी उसमें बहुत प्रोमिनेंट है, यक्ष मतलब मेल डेमीगॉड, यक्षिणी मतलब फीमेल डेमीगॉड,
दे आर द अटेंडेंट्स टू द गार्जियन डीटीज, तीर्थंकरास, लेकिन वो 4 गतिज का पार्ट नहीं, बस इतना आपने ध्यान में रखना था। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अब हलिसका जो है यहाँ पे द पॉइंट इज कि ये ना एक बार CASF का यूपीएससी पेपर करवाता है, उसमें आया हुआ क्वेश्चन, सो इट्स अ टफ क्वेश्चन, डेफिनेटली इट इज। तो मतलब आपने बस यहाँ पे ये ध्यान में रखना था कि दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आप छोड़ के आ सकते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, नो इश्यूज विद दैट, बट ये फोक डांस है, जॉइस फोक डांस। पर आप अगर नोटिस करो बाघ केस, बाघ केस में आप देखते हो कि बुद्धिज्म से बहुत रिलेशन है, तो बाघ केव में अगर बुद्धिज्म से रिलेशन है तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो समुद्र मंथन है या डिपिक्शन ऑफ शिव पार्वती, ये नहीं आएगा। तो ए और बी में से एक आना था, तो ए आंसर है इसका, बट अगेन एग्जाम में ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। नाउ प्लेस वैल्यू सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन है, अगेन मतलब आई वुड रादर से कि ये भी एक टफ क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो इसमें ऑल द 3 आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बट अगेन मतलब आई वोंट से कि ये आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये टफर साइड पे मैं इसको लेकर चलूंगा। इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं मतलब दे आर नॉट एट ऑल इजी फॉर एनीवन टू आंसर। 3 more questions to go, let's do them। अब आप एक चीज नोटिस करना, consider following statement about the archaeological finding in the Harappan towns। अब देयर इज स्पिंडल वर्ल्स मिली है हमें, एब्सेंस ऑफ स्पिनिंग व्हील्स है, वेट्स एंड मेजर स्केल्स की हम बात करते हैं, ये मिले हैं, देयर आर हाउसेस बिल्ड यू नो बेक ब्रिक्स वगैरह। अब देखो स्टेटमेंट 1 सजेस्ट द स्पिनिंग वाज हाउसहोल्ड एक्टिविटी, बिल्कुल सच बात लगती है। स्टेटमेंट 2 सजेस्ट हाई लेवल साइंटिफिक मैथमेटिकल स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही बात है, स्टैंडर्डाइजेशन दी। स्टेटमेंट 3 सजेस्ट द इमर्जेंस ऑफ द कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम। अब आप एक चीज माइंड में रखना, ये जो कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम की बात आई है, इसमें व्हाट एग्जैक्टली इज सर्टनली समथिंग जो कि आपको यहाँ बहुत अच्छे से पिक करना है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इज कि यहाँ पे जो कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम की बात आ रही है, आप एक चीज माइंड में रखें कि अगर सेल्फ कंटेन्ड हाउस है, बेक ब्रिक्स है, उनके अपने प्राइवेट वेल्स वगैरह हैं, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी सिस्टम बताएगा ना, कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम थोड़ी होगा। कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम वुड इंस्टीड बी अगर शेयर्ड कम्युनल लिविंग है आपकी, कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेस है, तो थर्ड स्टेटमेंट से आई वुड डिसएग्री, एंड दैट्स व्हाई 1 and 2 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आप ये नोटिस करना, यहां पे क्वेश्चन इज नॉट अबाउट दिस, वो फर्स्ट ये इन स्टेटमेंट्स की तो बात ही नहीं कर रहा, वो बात ही इन स्टेटमेंट्स की कर रहा है। सो दिस इज व्हाट मेक्स दिस क्वेश्चन अ बिट डिफिकल्ट, कि भाई दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट व्हाट, दे आर टॉकिंग अबाउट दीज पर्टिकुलर थिंग्स। बात समझ रहे हो? सो बात किस चीज की हो रही है आप ये सोचो, वो मतलब आपसे बेसिक स्टेटमेंट देके उस पर फर्दर डेरिवेशन करके पूछ रहा है, दिस इज व्हाट मेक्स द क्वेश्चन डिफिकल्ट। अब आप ये देखना, ये ओके, वेल्स अलाउड एग्रीकल्चर टू एक्सपैंड अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स, ठीक है, दैट इज द पॉइंट। ड्रॉट एनिमल्स जैसे बुल वगैरह होते हैं, तो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। अब आप ये देखो कि which of the following piece of evidence supports the above statement, now that is the point। there is evidences in the Rigveda of the use of asham chakra या फिर ahava to drop the water, now that is what they are saying। अब आप एक चीज माइंड में रखो कि irrigation from the well allowed for the agriculture to expand away from the flood plains, तो इसको कहीं ना कहीं हम सच मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि भाई एग्रीकल्चर की बात हो रही है। उसके बाद mentions have been made in the Rigveda of the use of कुलिशा या फिर जो दात्रा है या श्रेणी वगैरह की हम बात करते हैं। अब आप एक चीज यहाँ पे माइंड में रखो, ये जो सेकेंड वाली जो स्टेटमेंट है, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वन, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि यार ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे कंट्रोवर्शियल लगा है, हालांकि आई ऑनेस्टली वेट फॉर द यूपीएससी आंसर की। व्हाई? बिकॉज ये जो मेंशन है, जब हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे, इट इज मोर और लेस रिलेटेड टू द यूज ऑफ आयरन, जो कि उस समय नहीं हुआ था। हाँ, देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ यूज ऑफ द ऑक्स एंड फॉर द प्लोइंग, so I'll go with 1 and 3 as the right answer। Let's see what UPSC has to say, either B होगा या C होगा, but I'll still go with C as the right answer to this question। clear? क्यों? क्योंकि फिर वही बात है कि मतलब ये जो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स हैं, जो प्राशु है, दात्र है, these reference do not directly support the statement। जो ऊपर ये जो स्टेटमेंट दी हुई है, इसको सपोर्ट कैसे कर रहा है? क्योंकि ड्रॉट एनिमल की बात है, यहाँ पे बात है, ठीक है, वेल्स अलाउ कर रहे हैं, इरिगेशन की बात है, तो ये दोनों चीजें आएंगी, इसलिए मतलब थर्ड स्टेटमेंट थोड़ी मतलब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है थोड़ी सी इनकरेक्ट लग रही है। एनीवेज, अब यहाँ पे है राग बिलावल हिंदुस्तानी म्यूजिक के किस राग से जुड़ा हुआ है, ये भी बहुत टफ क्वेश्चन है। व्हाई? बिकॉज अगेन मतलब यू आर नॉट सपोज टू रीड ऑल दीज थिंग्स, बट एनीवेज अब क्योंकि अब हमें आंसर मिल गया है, तो वी कैन से धीरा, ये जो शंकर ब्राह्मण है, दिस इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। बट अगेन इज इट अ इजी क्वेश्चन? नो, नॉट एट ऑल, इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन। सो ओवरऑल इफ यू आस्क मी, स्पेशली हिस्ट्री का जो पेपर है, आई विल से कि हिस्ट्री में मॉडरेट साइड पे है मॉडर्न हिस्ट्री,
आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा सा इन्होंने टिपिकल क्वेश्चंस पूछने का प्रयास किया और ऑफ कोर्स एंशिएंट भी टफर साइड पे है, बट मॉडर्न हिस्ट्री इज डुएबल. सो आउट ऑफ दिस 21 क्वेश्चंस आई कैन से कि 8 to 10 क्वेश्चंस आर डुएबल एंड बाकी जो है उसमें थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग की जरूरत थी. दैट इज व्हाट आई वुड से. एंड ये जो 21 क्वेश्चंस हमने करे हैं, आई होप दिस हैज गिवन यू अ बेसिक क्लैरिटी ऑन यू नो व्हाट द लेवल ऑफ द क्वेश्चन वाज. सबसे मेन बात तो देखो यही होता है कि आपको एक मतलब बेसिक आइडिया मिल जाना चाहिए कि किस प्रकार का जो मतलब पेपर है वो यूपीएससी ने किया है एंड व्हाट एग्जैक्टली आर द लर्निंग्स फॉर यू एज वेल, वो भी यहाँ पे ध्यान में हमने रखनी है. सो ये जो 2021 क्वेश्चंस हमने किए हैं तो आपको एक रफ आइडिया इसने दे दिया है दैट नाउ इट इज नॉट जस्ट अबाउट रोट लर्निंग. वैसे इट वाज नेवर अबाउट द रोट लर्निंग, बट एनालिटिकल भी आपको नेक्स्ट लेवल पे होना पड़ेगा in order to answer these questions. So that's me, Akash, and they're signing off. I hope this session has added some value to your preparation. Do subscribe to the channel and do let me in the comment section if you have any more doubts on this. Thank you.